السلام علیکم کلاس. میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پولیٹیکل سسٹم. کورس ٹائٹل از انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس سیکنڈ اینڈ دس لیکچر از فار کلاس بی ایس پولیٹیکل سائنس سیکنڈ سیمسٹر. So Riaz here. Political system. While discussing about political system, first of all, we will discuss about the meaning and definition of system. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ system کس کو کہتے ہیں. System is a structural functional organization of two or more separate but interdependent parts which form an integrated whole to achieve some objectives. کلاس سسٹم جو ہے وہ ایک ایسا اسٹرکچرل اور فنکشنل یعنی اس کی ساخت اور اس کا کام، اس کا جو فنکشن ہے وہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، ایک ایسا مجموعہ ہے دو یا دو سے زیادہ سیپریٹ بٹ انٹر ڈیپینڈنٹ پارٹس، یعنی دو یا دو سے زیادہ ایسی چیزیں جو کہ بظاہر الگ الگ ہیں لیکن وہ ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. کس لیے کام کرتی ہیں؟ وچ فارم این انٹیگریٹڈ ہول، جو دو یا دو سے زیادہ سیپریٹ بٹ انٹر ڈیپینڈنٹ پارٹس جب مل کر کوئی ایک مجموعہ بناتے ہیں، کوئی ایک اور باڈی تشکیل دیتے ہیں ٹو اچیو سم آبجیکٹیوز، کسی مقصد کے حصول کے لیے، تو اس کو سسٹم کہتے ہیں. یعنی دو یا دو سے زیادہ ایسے پارٹس جو کہ سیپریٹ ہیں بٹ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پر کی ضرورت پڑتی ہے انہیں، وچ فارم جو کہ ایک انٹیگریٹڈ ہول ایک تشکیل دیتے ہیں کسی مخصوص آبجیکٹیو یا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس آرگنائزیشن کو سسٹم کہتے ہیں. اب جب ہم نے سسٹم کو ڈیفائن کر لیا، اب ہم آتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم کس کو کہتے ہیں. کلاس دیکھیں سسٹم کیا ہے؟ ٹو آر مور سیپریٹ بٹ انٹر ڈیپینڈنٹ پارٹس وچ فارم این انٹیگریٹڈ ہول ٹو اچیو سم اسپیسیفک پرپز is called system. While defining about political system means a network of individuals, groups and organizations. یعنی فرد واحد کا نیٹ ورک یا پھر گروپس کا یا پھر آرگنائزیشنز کا ایک ایسا نظام whose interactions and relationships help to determine, enforce and interpret the rules and policies governing the behavior of society. یعنی انڈیویژولس یا پھر گروپس یا پھر آرگنائزیشنز کا ایک ایسا نیٹ ورک پولیٹیکل سسٹم کہلاتا ہے جو کہ جن کا آپس میں انٹریکشن اور ریلیشن شپ کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے، وہ کیا کس چیز میں ہیلپ دیتے ہیں ان کے انٹریکشن اور ریلیشن شپ ٹو ڈیٹرمائن کہ چنی جا سکے، تشکیل دی جا سکے، بنائی جا سکے، منتخب کی جا سکے، انفورس اس کو اپلائی کیا جا سکے، اس پر عمل درآمد کیا جا سکے، اینڈ انٹرپریٹ دا رولز، اور اصولوں اور پالیسیوں کو بیان کیا جا سکے، ان کی وضاحت کی جا سکے. گورننگ دا بیہیویئر آف سوسائٹی، یعنی کسی بھی سوسائٹی میں جو رولز اور پالیسیز جو ہیں وہ گورن کر رہی ہیں، رول کر رہی ہیں، جو کہ رائج ہیں، ان کو تین چیزیں ہیں، ان کو ڈیٹرمائن کرنے میں ہیلپ کریں، ان کو انفورس کرنے میں اور ان کو انٹرپریٹ کرنے میں. یعنی انڈیویژولس، گروپس اور آرگنائزیشنز کا ایک ایسا نیٹ ورک جس کا آپس میں انٹریکشن اور ریلیشن شپ جو ہے وہ اس سوسائٹی میں جو رولز، ریگولیشنز اور پالیسیز رائج ہیں ان کو ڈیٹرمائن، انفورس اور انٹرپریٹ کر سکے، اس کو پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں. Each system has two or more subsystems within it.
while it is itself a subsystem of a larger system which forms its environment. For example, a family is a subsystem of the society, or a political party is a subsystem of the state which is itself a political system. यानी हर सिस्टम जो है उसके जो पार्ट्स होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं बट इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको सब सिस्टम कहा जाता है। यानी दो या दो से ज़्यादा सब सिस्टम्स मिलकर एक बड़ा सिस्टम तश्कील देते हैं, और एट अ टाइम वो सब सिस्टम भी अपने अंदर एक पूरा सिस्टम मैनेज किए हुए होते हैं। जैसे कि आप देखिए ह्यूमन बॉडी है, उसमें उसके तमाम जो ऑर्गन्स हैं, वो ह्यूमन बॉडी को अगर हम एक होल सिस्टम का नाम दें तो इसके तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो इसके सब सिस्टम्स कहलाएंगे। अब हर ऑर्गन को अगर हम सेपरेटली देखें, अब कीप इट इन माइंड कि तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो सेपरेट हैं बट इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के से मिलकर काम करते हैं। अब हर ऑर्गन जो है उसका जो भी उसकी वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो एक अलग से एक पूरा सिस्टम है उसमें। फिर उसमें जो मज़ीद उसके सब सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उस सिस्टम के सब सिस्टम कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि ये जो इंसानी जिस्म में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, हार्ट का सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, आपका ब्रीदिंग का है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जितने भी पार्ट्स हिस्सा ले रहे हैं वो तो इसके सब सिस्टम कहलाएंगे। जबकि आप देखें ब्रीदिंग सिस्टम जो है ये एक सब सिस्टम है बॉडी का। फिर ब्रीदिंग सिस्टम को अगर हम एज अ सिस्टम लें तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो सारे उसके सब सिस्टम कहलाएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो अब मैंने आपको बताया कि ये इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस such as legislature, executive, judiciary, but also all structures in their political aspects। यानी जितने भी स्ट्रक्चर्स उसमें आ रहे हैं वो सारे इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। Every political system exists within a social system or society of which it is really a subsystem along with other subsystems such as economic, cultural or educational subsystems. Society around the political system is its environment from which it is separated by its boundaries। देखें हर पॉलिटिकल सिस्टम ज़ाहिर है किसी न किसी सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है, इंसानों में ही एग्जिस्ट करता है। जंगल में तो कोई सिस्टम का वजूद नहीं होता ना, तो वो जो सोसाइटी है, जो माशरा है जहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें उसके अलावा अदर सब सिस्टम भी हैं जो इस पूरे सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी फंक्शनिंग में। जैसे अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सब सिस्टम है, कल्चरल या फिर एजुकेशनल। तो जो सोसाइटी है जिसमें ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो प्रिवेल कर रहा है उसको एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में कि इनपुट, आउटपुट और फीडबैक के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम जिस माहौल में एग्जिस्ट कर रहा है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। और देखें इनपुट्स कहते हैं पब्लिक ओपिनियन को। ये इनपुट जो है ये कॉमन मैसेज जो है ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं अपनी ओपिनियन, अपने फीडबैक के तौर पे इन और अपनी डिमांड्स के तौर पे। अब क्या है कि अवाम जो है वो अपनी डिमांड इनपुट की सूरत में और फिर पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके सपोर्ट की सूरत में जो है वो अपनी इनपुट जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में देती हैं। और आउटपुट की क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो गवर्निंग बॉडीज़ जो हैं, वो जो डिसीजंस और एक्शंस लेते हैं तो उसको आउटपुट कहते हैं। यानी आवाम की डिमांड, यानी आप लोगों ने पहले तो डिमांड की,
कैलकुलेट किया अपना इंटरेस्ट जो है, उनकी जो कुछ उनको चाहिए वो उसकी डिमांड करेंगे, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो गवर्नमेंट का किस तरह साथ देते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक आप वोट देकर अपने नुमाइंदे चुनते हैं, तो फिर वो नुमाइंदे आपको आउटपुट, उसका रिवार्ड क्या देते हैं कि वो गवर्नमेंट में आके, पावर में आके वो डिसीजंस लेते हैं आवाम की फेवर में, उनकी डिमांड्स को पूरा करने में, और फिर एक्शंस लिए जाते हैं। तो इसको डिसीजंस और एक्शंस को हम आउटपुट कहेंगे, डिमांड्स को हम इनपुट कहेंगे, और सपोर्ट को इनपुट कहेंगे। ये सारा प्रोसेस जिस एटमॉस्फेयर में हो रहा होगा उसको क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। और वो जो डिसीजंस और एक्शंस लिए जाएंगे उनका रिज़ल्ट जो है, अवाम अब उनसे सेटिस्फाइड हुई या उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुई, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई या नहीं हुई, ये चीज़ सपोर्ट की फीडबैक की शक्ल में वापस आएगी। और फिर अगर अवाम मुतमईन है तो फिर वही प्रोसेस जारी रहेगा। अगर उनको मज़ीद कुछ चाहिए, उनकी डिमांड्स अभी सेटिस्फैक्ट्री तौर पे पूरी नहीं हुई, तो मज़ीद इनपुट की सूरत में अपनी जो है डिमांड्स पेश करेंगे। इस तरह ये एक सर्कल, एक साइकिल जो है वो इनपुट आउटपुट फीडबैक, इनपुट आउटपुट फीडबैक, इस तरह ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। Political system is a goal attaining subsystem of the society. Function of a political system is to convert inputs or demands of people into outputs or decisions of the political authorities. It is a structural functional subsystem of the society which is its environment from which it derives its resources in order to satisfy the demands of the people. However, environment also includes several political and social subsystems. अब अगर पॉलिटिकल सब सिस्टम्स की बात करें तो वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एट्सेट्रा। और अगर हम सोशल सब सिस्टम्स की बात करें तो वो हैं फैमिलीज़ हैं, कल्चरल एसोसिएशंस हैं, क्लब्स हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फैक्ट्रीज़, फार्म्स, ट्रेड यूनियंस, corporations, etc. All these political and social subsystems are the sources of demands which their members or people make on the government and also provide supports to it. आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।